یوم پاکستان پر دفاعی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ، مسلح افواج کی پریڈ ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں مرکزی تقریب میں صدر وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہوں کی شرکت۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان مہمان خصوصی تھے۔ بری، بحری اور فضائی افواج سمیت سیکورٹی داروں کے دستوں نے حاضرین اور ناظرین کا لہو گرمائے رکھا۔ سب سے پہلے علمبردار دستے نے سلامی دی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی پہلی بار پریڈ میں شرکت، لیڈیز افسران کے خصوصی دستے نے بھی سلامی پیش کی۔ SSG کمانڈوز نے اللہ کے نعرے لگاتے دشمن پر ہیبت طاری کر دی۔ دوست ممالک چین اور آذربائیجان کے فوجی دستوں نے بھی پریڈ کو رونق بخشی۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، فخر پاکستان JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی مہارت کا مظاہرہ۔ کوبرا اٹیک، بیل اور MI-17 ہیلی کاپٹرز پر کمانڈوز کی انٹری۔ شیر دل ٹیم نے مختلف ایروبیٹکس مظاہرے کیے۔ پیراٹروپرز شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے اترے اور وزیر اعظم کو جھنڈا پیش کیا۔ پاک چین دوستی کا منفرد شاہکار حیدر ٹینک کی انٹری۔ پاکستان کے پہلے خود ساختہ الخالد سمیت دیگر بہترین ٹینکس اور آرمڈ پرسنل کیریئر بھی پریڈ کا حصہ بنے۔ توپ خانے، راکٹ سسٹم، مائن ڈسپینسنگ سسٹم اور لانچ بریجز کی جھلک دکھائی دی۔ ایئر ڈیفنس کے ریڈارز، پاکستانی ساختہ ڈرون طیارے، UAVs، خود ساختہ اور جدید میزائل سمیت دیگر دفاعی اثاثے پریڈ میں شامل رہے۔ مرکزی تقریب میں علاقائی ثقافت کی خوبصورت عکاسی، چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان کے فلوٹس گزرے۔ کشمیری فلوٹ پر سائیں سہیلی سرکار کی منظرکشی، سید علی گیلانی اور سید برہان وانی کا عکس نمایاں تھا۔ ایوان صدر میں مختلف شعبہ جات کی متحرک 829 شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا۔ قائم علی شاہ، راجہ ظفر الحق، عبد القدوس بزنجو، ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، فواد حسن فواد، مشتاق سکھیرا بھی ایوارڈ لینے والوں میں شامل۔ فہد ہارون کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز، بریگیڈیئر سید سرفراز مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات سے نوازا گیا۔ صدر آصف زرداری نے شاندار خدمات سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کی تقریب۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، اصلاح الدین صدیقی کو ہاکی کے شعبے میں خدمات پر نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اور سلمان غنی کو صحافت کے شعبے میں خدمات پر صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ معروف چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ممپال سنگھ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ افتخار عارف کو ادب کے شعبے میں خدمات پر نشان امتیاز، شاعر انور مسعود کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اداکارہ شبنم، راحت فتح علی خان، فاخر محمود اور کوہ پیما نائلہ کیانی بھی ایوارڈ لینے والوں میں شامل۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم۔ صدر مملکت نے فوجی اعزازات ستارہ بسالت، تمغہ بسالت، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ISPR کے مطابق SSG کے سپاہی اسرار محمد کو ستارہ بسالت اور بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال شہید کو تمغہ بسالت دیا گیا۔ میجر جنرل سید الرحمان سرور، میجر جنرل محمد عاصم خان اور میجر جنرل ندیم یوسف کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ میجر محمد جواد شہید اور میجر میاں عبداللہ شاہ شہید کو تمغہ بسالت دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل صفدر علی خان کو بھی تمغہ بسالت عطا کیا گیا۔ افسران اور جوانوں میں 23 ہلال امتیاز، 109 ستارہ امتیاز اور 137 تمغہ امتیاز دیے گئے۔ 45 امتیازی اسناد اور 148 چیف آف آرمی اسٹاف تعریفی اسناد بھی دی گئی۔ یوم پاکستان ترقی، امن، خوشحالی کے عہد کی تجدید کا دن۔ 84واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دن کا آغاز توپوں سے سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ کراچی میں مزار قائد پر گورنر کامران ٹیسوری اور صوبائی وزیر شرجیل میمن اور دیگر شخصیات کی حاضری، خراج عقیدت پیش کیا۔
पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। कहा, किसी भी क़ुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। सदर ममलकत की गजा में फौरी जंगबंदी और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हम पाकिस्तान को दरपेश संगीन चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है। जल्द मुआशी इस्तेहकाम आएगा और महंगाई की लहर पर काबू पा लेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने सऊदी शाही मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी मुफाद के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़म का आयादा। शहजादा खालिद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। मुलाकात में दो तरफा अमूर, इलाकाई अमन सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी परचम को हर कीमत पर सरबुलंद रखने की आज़म का इजहार करते हुए कहा, मुल्की सालमियत और इलाकाई सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी पैगाम में कहा, 23 मार्च का दिन हमें आज़ादी की अहमियत और कदर की याद दिलाता है। आज हिंदुस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को फाशिस्ट हुकूमत के हाथों बदतरीन मजालिम का सामना है। हम हर रोज़ अपनी आज़ादी की कदर और उसका एहतराम करते हैं। मुसल्लह फ़ौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करती है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तकरीब में आमद पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहजादा खालिद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने शानदार ज्वाइंट सर्विसेज परेड का मुशाहिदा भी किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैरख्वाह रहे हैं। मुलाकात यौम पाकिस्तान की तकरीब के बाद हुई। एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद सऊदी वज़ीर दिफा वतन वापस रवाना हो गए। सियासी क़यादत के यौम पाकिस्तान पर पैगामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तामीर पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। नौजवानों को इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम और काम की करारदाद को अपनाना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज ज़रूरत है कि हम उन अफकार और नज़रियात पर कारबंद रहें जो पाकिस्तान के हुसूल की बुनियाद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, आए अहद करें हम अपने कायदीन के ख्वाबों को हकीकत का रूप दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यौम पाकिस्तान पर मुल्क के बानियान की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। यौम पाकिस्तान पर सूबों में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीबात। तालीम, सेहत, तामीरात, खेल और फन समेत अहम शोबों में काबिल फ़ख्र कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। लाहौर में गवर्नर पंजाब बिलीकुर रहमान, सिंध में गवर्नर कामरान टेसोरी और बलोचिस्तान में कायम मुकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को एवार्ड्स तकसीम किए। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। दुनिया भर में यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीबात। अमरीका, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया समेत कई ममालिक में यौम पाकिस्तान के केक काटे गए। तकरीबात में गैर मुल्की सफारतकारों, मकामी हुकाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान चांसलरी में भारत में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद बड़ाइच ने परचम कुशाई की। ईरान में भी नौरोज़ और यौम पाकिस्तान का जश्न। बुर्ज आज़ादी पर पाकिस्तान और ईरान के झंडों के रंग बिखरे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में कोरियाई बच्चों ने पाकिस्तान का कौमी तराना पेश करके समा बांध दिया।
हुकूमत टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए कोशां। निजी स्कूल, कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों और जिम क्लब्स को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स, गैर मुल्की कंपनियां भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर की पाबंद होंगी। हुक्म के मुताबिक सिस्टम के नफा से सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की चोरी पर काबू पाया जाएगा। ब्रसल्स इजलास में जौहरी तवानाई और हाइड्रो एनर्जी से मुतालिक अहम नुकता उठाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सब ने इत्तेफाक किया जौहरी तवानाई इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है। जौहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल बारे तजुर्बात दुनिया से शेयर करने को तैयार हैं। आलमी मालियाती इदारों को भी ताउन करना चाहिए। 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान को कुदरती आफात का भी सामना रहा। कुदरती आफात के बायस मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान हुआ। चीन की तरह तुर्किया भी मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से जांबहक 21 साला नौजवान आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। नागहानी मौत पर हर आंख अश्कबार। अहले खाना के मुताबिक आसिफ की ईद के बाद शादी तय थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। इंतजामिया और पुलिस सरबराहान से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इंतजामिया पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा, तफरीह के लिए किसी शहरी की जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पतंगबाजी काबिल सजा जुर्म है। थाना फैक्ट्री एरिया में वाक़े का मुकदमा दर्ज। SHO मुअत्तल। पुलिस मुल्जिमान का ताहाल सुराग नहीं लगा सकी। तो मैं मेरा साली घर से जा रहा था, मतलब पर्स में मोबाइल, 2 बच्चे आगे, उसका पर्स ही छीन के ले गया। आप कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं, किसी को क्या पता? आप उसका चेहरा आवाम को दिखाएं ताकि कल वो जराइम करने से पहले सोचे। सर, सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हम गरीब क्या वालों के साथ नाजायज हो रहा है कि मोबाइल छीन लेते हैं, वॉलेट ले लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक के अशराए मगफरत में भी मुनाफाखोर बाज न आए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में महंगाई का तूफान। रमज़ान में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगीं। प्याज 220, अरवी फ़ी किलो 240, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। 600 रुपये किलो लहसुन और 580 रुपये किलो अदरक पहुंच से बाहर। सब्ज मिर्च 200, शिमला मिर्च 300, बैंगन 120 रुपये किलो, मटन 2000, बीफ 1000 और चिकन 575 रुपये किलो दस्तयाब। सेब 450 रुपये किलो में मिलने लगा। माल्टा 100 से 200 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरी 400, अमरूद 290, खरबूजा 200 रुपये किलो पर पहुंच गया। शहरी परेशान, कहते हैं अब तो इफ्तार पर भी रूखी सूखी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कमाने 400 लगते हैं, लाख 1000 जाता है। मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, कोई समझ नहीं आ रही। सस्ता माह रमज़ान बाजार लगी है, लेकिन वहाँ पे जाए तो और भी ज़्यादा महंगाई होती है। गोश्त तो गरीब नहीं खा सकते, लेकिन महंगाई इतनी है, किसी चीज़ को 2 से 3 चीज़ों को हम हाथ डालते हैं, इससे ज़्यादा हम चीज़ को नहीं ले सकते। मेरी तन्हाई की तूने तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। रमज़ानुल मुबारक के 12वें रोज़ का मौजू था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल अली वक़ार क़ादरी की मौजू पर शेर हासिल गुफ्तगू। डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली और प्रोफेसर यूसुफ इरफान ने भी पाकिस्तान के क़याम के तसव्वुर पर रोशनी डाली। कारी मोहम्मद जमील क़ादरी ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। नात ख़ां अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी और मोहम्मद तारिक इस्माइल ने खूब समा बांधा।